فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح نصف الإيمان. اور ثلاثا ومن بے سرو سما مدد قبلئی مدد کعبئی مدد آقا مولا مرشدی شاہ سید الہند مولا مددی. یہ ہائٹ دیکھ کر سمجھ لیا ہے کہ چلتا پھرتا مولوی ہے. ابے جلسہ میں کوئی اٹھ نہیں سکتا، تو میلاد میں چند لوگ بیٹھا اٹھ کے بھاگنے کے چکر میں لگا. تو مارنے کی بات تو بیٹا سن کرو، اور ہم لوگ برے ہونے والے ہیں. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی المبین المتین الکریم. ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے، کسی بہانے مصطفیٰ کے ذکر کو کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرما دی. آمین آمین. جب میں ممبر پہ آیا تو کسی سے سوال و جواب کا مرحلہ اس قدر طول نہیں تھا، بلکہ سوالات تھے کہ لوگ گھر سے نکلتے کیوں نہیں. یہ سوالات بہت اہم ہے، اور میں آپ کو بتا بھی دوں گا کہ ذکر میں سب نہیں آتا ہے. جسے مصطفیٰ بلاتے وہی میلاد میں آتا ہے. بے شک بے شک. چچا کے کان میں سبحان اللہ کہیے، چند منٹ سوئیے نہیں. اس لیے کہ برادر کبیر جناب عبدالرؤوف صاحب نے اپنے لخت جگر کی شادی پر ذکر سرکار کرا کے اپنا بھی فائدہ کر لیا ہے، اور آپ کو سنوا کر آپ کے اعمال میں بھی نیکی کا فائدہ کرا دیا. بے شک سبحان اللہ. عزیز القدر قابل احترام حضرت حافظ غلام احمد رضا غلام گیلانی صاحب اور آرزو بابو کی تو نعتیہ شاعری کی سواری پر آپ چڑھ کے چند منٹوں میں بغیر روپیہ توڑ کر چلا جاؤں گا. جہاں جانا ہے وہاں خطیب سب ہے، جانے میں اب تو جلسوں میں بھی مجھ کو سب سے لاسٹ میں لایا جاتا ہے کہ سب دھنس جائے مر جائے تب جگائیے سبحان اللہ بلائیے تقریر سنائیے. آج پہلے موقع مل گیا ہے، اللہ رب العالمین کا کرم ہے. آئیے ہم لوگ اپنے اس نبی کے حسن طیبہ پر ذکر کرنے سے بہتر ان کی ذات بابرکات پر تبصرہ بعد میں ہو. ان کے خیال و فکر کے سمندر میں ہم متازن ہو جائے، اپنے احساس کی بالغی کی چادروں کو اس کے مصطفیٰ کے عطر سے خوشبودار کر لیں. جس مصطفیٰ کے حسن جمال کو دیکھا تو حضرت روم نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آچے خوبا ہما دارت تو تنہا داری. اس مصطفیٰ جان رحمت کے حسن جمال کو دیکھا تو قرآن پاک نے حسن جمال مصطفیٰ کو دیکھا تو فارسی کا سب سے بڑا معلم جسے سید سعدی کہتے ہیں قلم لے کر بول پڑا بلغل غلاب کمالے ہی کشفت بجاب جمالے ہی حسنت جمیع خصالے ہی صلو علیہ وآلہ ہی. اس مصطفیٰ کے حسن و جمال کو دیکھا تو ہم سب کے شاہ ہماری شان ہماری پہچان مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے قلم اٹھا کر کہا سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھ شیشے میں چمکا ہمارا نبی. اس نبی پر ہم درود و سلام پڑھیں گے جس نبی کے کردار و احساس کو دیکھ کر لوگ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر دامن اسلام میں داخل ہو گئے. تو آپ اپنے فکر کی سواریوں پر چڑھ جائیے اور حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس انداز سے درود پڑھیے کہ آپ کا جسم یہاں رہے اور آپ کے خیال کا پرندہ مدینہ شریف میں رہے. تو سب لوگ میرے ساتھ مل کر پڑھیے اللہ رب محمد وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون کہتا ہے کہ بڑے بڑی
बड़े बड़े गांव में इस तरीके से लोग जागरानी की कैफियतों पर उबूर कुर्सी लगाकर अपनी सदाकत और इंबसात की हैसियत नहीं देते, लेकिन खैरवी में चंद लोग हैं अपने फिक्र की पालीदगी के लिए अपने नबी पर दुरूद पढ़ा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे और ज्यादा आपको एक बात करनी चाहिए हजरात, ये कभी अब्दुल रऊफ भाई को नहीं सोचनी चाहिए था कि फला मेरी मिलाद में नहीं आया। आप हमेशा ये याद रखिए, मिलाद में गंदे लोग नहीं आते हैं बल्कि मिलाद में अच्छे लोग आते हैं। आप कहेंगे कल कोई गुलाम अहमद रजा से सवाल कर सकता है, मौलाना बुलाया मुझे गंदा कहा। हजरात किताब नोट करो, किताब का नाम है मिशकात शरीफ, जिल्द अव्वल बाबुल इस्तिग़फ़ार व तौबा, सफ़ा नंबर 203 की हदीस है। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इदा अज़म्मा नुक़्ततु सौदाउ फ़ी क़ल्बी व इताबा वस्तग़फ़रा सुक़िला क़ल्बा व इन ज़ादा ज़ादत हत्ता तालु क़ल्बा फ़ज़ालिका मुर्रानुल लज़ी ज़करल्लाहु तआला कल्ला बल राना अला क़ुलूबिहिम मा यक्सिबून। तुम्हारे नबी ने फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया, कायनात के तबीब ने फरमाया, मालिक कुल ने फरमाया कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल में काला सा दाग पैदा होता है। जब वो और गुनाह करता है तो पूरा दिल सियाह हो जाता है, और जब दिल सियाह होता है फ़ज़ालिका मुर्रानुल लज़ी ज़करल्लाहु तआला कल्ला बल राना अला क़ुलूबिहिम मा यक्सिबून। फिर उस आदमी का दिल मिलाद में नहीं लगता, मस्जिदों में नहीं लगता, उलमा के करीब नहीं लगता, बाकी खिदमतों में नहीं लगता, उलमा की सोहबतों में नहीं बैठता। क्या पता ना आदमी का दिल बिगड़ा है तो आंखें बिगड़ गई, आदमी का दिल बिगड़ा है तो जुबान बिगड़ गई, आदमी का दिल बिगड़ा है तो हाथ बिगड़ गया, आदमी का दिल बिगड़ा है तो पाँव बिगड़ गया। और जब सब बिगड़ता है तो आदमी शद्दाद बन जाता है, आदमी फिरौन बन जाता है, आदमी नमरूद बन जाता है, आदमी कारून बन जाता है। हमारा दिल बिगड़ा तो आदमी अबू जहल बन गया, और जब यही दिल संभला तो आदमी सिद्दीक़ अकबर बन गया, फारूक आज़म बन गया। जब यही दिल बिगड़ा था तो अशरफ अली थानवी हुआ, और जब यही दिल संभला तो बरेली का अहमद रज़ा हुआ। तभी तो जन्म लेके कहा दिल करो ठंडा मेरा, चांद सा सीने पे रख दो जरा तुम पर करे नारे रिसालत सुन्नते मुस्तफा कौन प्रेस। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहते हैं, इज्जत से कहना है तो 10 टकिया मत दीजिए, अगर तो रिश्ता वो है तो माइक से उतरेंगे तो पूरा मीजान सुना के चले जाएंगे। इसलिए कि हमारा जो साथी सब था दूगो उधर फंसा हुआ है, आइए वो हम इधर फंसे हुए। गौहर सास ससुर के चक्कर में फंसा है, गौहर साहब कुछ बहन के आए और हम समझ रहे हैं। तो जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं हमें यार हाथ उठाकर बोले ना यार रसूल अल्लाह, हाथ उठाना ये ऐब नहीं, तो इससे फख्र की बात है। इन उलमा से पूछो किताब का नाम अश-शिफा है, दूसरी किताब का नाम मदारिजुन नबुव्वा है, तीसरी किताब का नाम अनीसुल जलील है जिसके राइटर अल्लामा जलालुद्दीन है, शिफा के राइटर अल्लामा काजी आजाद है, तीसरी किताब है खसाइसुल कुबरा उसके राइटर अल्लामा जलालुद्दीन सियूती है। लेकिन मैं जो हदीस पेश कर रहा हूँ ये हदीस आपको शिफा नंबर 2 सफा नंबर 254 सहाबी रसूल है जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर है। इनके हाथ में तकलीफ हो गई, डॉक्टरों ने इलाज कर दिया, तबीबों ने इलाज कर दिया, हकीमों ने इलाज कर दिया। आपने कहा ए लोगों अब दवा काम नहीं करती, इंजेक्शन काम नहीं करता, इकमियतें काम नहीं करती। तब आपने अपने चाहने वालों को बुलाया और बुलाकर मशवरा लिया कि अब क्या
किया जाए, तो उन्होंने जवाब दिया, ए अब्दुल्ला इब्ने उमर ये बताइए, डॉक्टर ने ला इलाज कर दिया, हकीम ने ला इलाज कर दिया, तबीब ने ला इलाज कर दिया, तो ये बताइए आपको दुनिया में सबसे ज्यादा किससे प्यार है? आपने कहा अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपने रिश्तेदार से ज्यादा, यहाँ तक के अपने खिशो अकारीब से ज्यादा और अपनी जान से ज्यादा। अगर मुझे प्यार है तो आमना के लाल से प्यार है, अब्दुल्ला के लफ्ते जिगर से प्यार है। हाकिम अल मुस्तदरक अल सय्यद में इमाम हाकिम फरमाते हैं, जब रात का सन्नाटा हुआ, हर तरफ हवाएं साए साए चलने लगी, पीली सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिले दिलों की, ये हवाएं किधर की है? जब मदीने के लोग आराम कर रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर है और वजू किया है और मुसल्ले पे जा करके दो रिकात नमाज़े नफल पढ़ी है और मुस्तफा के मज़ार की तरह अपने हाथों को बुलंद करके कहा, या मुहम्मदा, अभी हाथ नहीं गिरा कि अल्लाह ने शिफाए कामिला अता फरमा दिया। पता क्या चल गया? जिसमें बीमारी हो तो मुस्तफा का नाम लो, आंख में दर्द हो तो मुस्तफा का नाम लो, तबीयत खराब हो जाए तो मुस्तफा का नाम लो, इसलिए कि दवा काम नहीं करती, नाम मुस्तफा काम करता है। तभी तो बरेली का रदा बोला, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, जिनके कलमों का धुआं हया पे हया है, जाने मसीहा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत और भाई अहले सुन्नत। हज़रात मोहब्बत से बोलिए, सुभान अल्लाह। टेंशन में बैठे हुए हैं। लड़के का शादी हैं? शादी है? लड़का तो इधर बैठा है। नहीं, उनका भी लड़का इधर ही अच्छा, है। उनके लड़के की शादी 20 तारीख को। हाँ हाँ, तैयारी चल रही, इसी टेंशन में है। कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। मैं अभी आपको बताऊंगा कि निकाह कितना अफजल चीज है। पहले तो आप अपने किरदार को इसके मुस्तफा की भट्टी में डालिए, ताकि जिस्म जल भी जाए तो रूह ऐसे बोले जैसे बरेली का मुफ्ती आजम बोलता है। एक वाकया सुना दो, सुन ले, रख ले, तो अपने मायला चीज जो किन के चला जा। सुभान अल्लाह। अपने जब बेटा जवान हो तो बाप को एहतियात में देखना, पैसा हमसे जबरदस्ती लेना, कमा के को रुपया भी नहीं दिया, मिलादों में जाता है तो सब कुछ हमरे खाता है। अल्लाह ताला इस बाबू को सलामत रखे, कहिए आमीन। अरे दुआ मांगना, बुखारी शरीफ किताबुल इल्म की हदीस है। मुस्तफा फरमाते जब नमाज फज्र की बात, यानी जोहर के फर्ज के बाद इमाम दुआ मांगे, असर के बाद दुआ मांगे, मगरिब के बाद दुआ मांगे, या इस्तिमा में कोई आलिम दुआ मांगे, तो आका फरमाते मेरी उम्मती हो आमीन कहने में देर न करो। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, उससे फायदा क्या है? तो मुस्तफा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला दुआ मांगने वाले से पहले आमीन कहने वाले की दुआ कबूल फरमा लेता है। पता क्या चल गया? हम दुआ मांगते हैं तो इजाजत को जाती है, और मुस्तफा दुआ मांगते हैं तो इजाजत नीचे उतर करके दुआ को कबूल करती है। इसी को आला हजरत कहते हैं, इजाजत ने झुककर गले से लगाया पढ़ी ना जिसे, जब दुआए मोहम्मद इजाजत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। अब सुनिए, एक हदीस और सुना दो तो सुभान अल्लाह से बोलिए, इतने जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलने से अब बेटो नैतिक है कि कल को कहेगा कि गुलाम अहमद रजा के भाई की शादी अमजद की थी तो मौलाना लोग को दावत दिया था, इनाम दे रहा था, अब्दुल रऊफ साहब दे रहे थे, हम लोग सुभान अल्लाह बोले तो मेरा फायदा क्या है? आजकल कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसके घर पे छप्पर भी नहीं वो बगैर फायदे के मौलवी साहब को पानी पिला। सही बोला, इतना तबाह किया है मौलवियों को जिसका कोई जवाब नहीं। सबसे ज्यादा अगर किसी की तनख्वाह कम है तो ये उलमा की, और कहा बढ़ा दीजिए तो सदर सेक्रेटरी को कहा कहिए न रखिए, बड़ी बरकत है।
बरकत के भूखे मरने पे तुला है, तुम बरकत के चक्कर में पड़ा। दहेज में 2 लाख रुपया लेगा, लड़का का मुंह उत्तर है, बाप का मुंह पश्चिम है, 2 लाख रुपया। अब ऊपर से पैसा आगे ले जाते मौलाना, निकाह के वक्त बैठा के लड़का दवा पीछे से खड़ा होकर कहता हजरत रखना लीजिए। ठीक है, इमाम साहब ने कहा ठीक नहीं, बना के दीजिए। तो लड़का का बाप सीधे पिकअप पकड़ के कहता है इतना नजराना कौन किताब में लिखा है? और नजराना किताब में नहीं, बेटी वाला से 2 लाख लिया, ये कौन किताब में लिखा? जहाँ तुम्हारा लिखा उसी के नीचे 5000 हमारा लिखा। हमने ऐसा मौलवी होता है तो भक्ति सीधा कर दे। हजरत ये हंसने का जुमला नहीं, रोने का जुमला है। मुसलमान इसलिए नहीं बनाया गया कि गरीब बेटियों से दहेज मांगे, उसके बाप को रात के सन्नाटे में वो रातों में सोता नहीं, अपनी बेटी की आहट मना करता है। ये सुन्नियों नारा ठोकने वाली क्यों लगाते हो जब तुम्हें यकीन है कि गौस देता है, आला हजरत देता है, मुफ्ती आजम देता है, और जब कोई नहीं देता है तो मदीने का मुस्तफा देता है। और ऐसे देता है जैसे आला हजरत का अकीदा दे। आला हजरत कहते हैं उनकी इनायतों का तो जहां में चर्चा देते हैं ईसाइयों को अपने तरफ से बाबा, और आया जो भी करे उनकी गली में मनता दामन को अपने भर के कहते हुए ये लौटा मेरे करीम से गाँव जतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए। तो बुखारी शरीफ अभी नेता आ जाए एकदम जिसके पाँव में दर्द भी है वो बुढ़वा कूदे ताकि मुखिया कहे ये हमारा आदमी। मुखिया दुनिया के लिए है, और जिस मुस्तफा का जिक्र है नेता कहे अपना कहे ना कहे फिक्र ना करो। आमना का बेटा तुझे अपना कह दो इसकी फिक्र करो। बेशक सुभान अल्लाह। मैं आपको एक रवायत सुना देता हूँ। एक आशिक रसूल है जिनका नाम मुफ्ती आजम है। उनका मजार का मालूम आपको श्रीलंका में कहा है? ये तो हो गए याना 1 दर्जन याद है छोकरा, बुढ़वा को खीसा याद है लेकिन अपने बुजुर्गों की दास्तानें याद नहीं। जब काटा जाता तब कहता हम ही तबाह है। तबाह होगा नहीं। कुरान कहता वला तहनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलम इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही कामयाब हो, तुम ही सरबलंद हो। शर्त है कि तुम मोमिन है। जहाँ पिटारा मुसलमान हो के कब्र में पता चलेगा, जब पीटे जाओगे तो पता चलेगा कि मुसलमान थे ही नहीं। हजरात आप जानते हैं हमारी फिक्र का लिबादा कैसा हो। आओ मैं उस आशिक की कहानी सुनाऊं। जरा एक मरतबा हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह कह दो तो सुना देता हूँ। या रसूल अल्लाह। ट्रेन से सफर कर रहे हैं, और जो लोग ट्रेन से सफर करते हैं उन्हें मालूम है कि जहाँ पे पटरी ज्वाइन रहती है ना, वहाँ पे जब इंजन का चक्का पहुँचता है तो कट 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 की आवाज आती है। और ज्यादा अगर गैपिंग है तो बाज़ औक़ात ऐसे भी होते हैं कि सीट वाला उछल कर नीचे भी आ जाता है। बरेली का ताजदार सोया है अपनी सीट पर, सामने पंडित बैठा। जैसे ही रात का सन्नाटा हुआ एक आवाज गूंजी अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जैसे ही आवाज गूंजी पंडित सीट से नीचे उतरा। उतरने के बाद उसने मुशाहिदा किया कि मुसलमान के जोहर का वक्त नहीं, असर का वक्त नहीं, मगरिब और इशा का वक्त नहीं, लेकिन अल्लाह की सदा कैसे बुलंद हुई। तब वो भूगियों का चक्कर लगाया तो देखा बरेली का चांद, आला हजरत का भरोसा, गौसे आजम की करामत, इमाम आजम का तकर्रुब लेकर मुफ्ती आजम लेता है। जैसे ही वो नजर उसकी पड़ी तो देखा कि आंख लगी है लेकिन दिल से अल्लाह की सदा बुलंद हो रही है। अब वो पंडित सोचने लगा कि डॉक्टरों का कौल ये है कि आदमी सो जाता है तो उसका नफ्स तो चलता है लेकिन सोचने की सलाहियत नहीं, अकले शरीर नहीं रखता, उसकी रूह परवास करती है। लेकिन ये कैसा मौलवी है कि इसकी आंख लगी है लेकिन दिल से अल्लाह की सदा बुलंद हो
रही है, अब वो जगने का इंतजार किया। जब बरेली का चांद आँख खोला, जैसे ही अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का जुमला कान से टकराया, मेरा मुफ्ती आज़म जगा, कायनात का मुफ्ती आज़म जगा, आला हजरत का बेटा जगा, मुफस्सिर आज़म का ससुर जगा, मेरा मुफ्ती आज़म जगे। वो पंडित कहता है मौलाना एक बात मुझे समझा देना, अरे जब आदमी सोता है तो उसका दिल मशीन की तरह ऐसे काम नहीं करता जैसे आपका दिल अल्लाह की सना बुलंद करता। तो मेरा मुफ्ती आज़म कहता है जब मैं सो जाता हूँ मेरी आंख लग जाती है, तो मेरा दिल मदीने का तवाफ करने लगता है। पता क्या चल गया कि आशिक मजार में रहे, आशिक जमीन में रहे, आशिक जमीन पर रहे, तो यही ख्याल रहता है जो मुफ्ती आज़म ने कहा। तस्कीने कल्बे जाकर सामान हो गया, तैबा मेरी हयात का उन्वान हो गया। सुल्ताने कायनात के रोज़े के साए में जो भी फकीर आया सुल्तान हो गया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। तकरीर करियो कि खत्म कर दियो? तू तो वीडियो ही करे ना, हमने लगा प्रदर्शित कर हमको नेता नहीं माना। अब सुनो, हाँ उधरे जाना बोलो। आपके यहाँ मस्जिद है, नमाज तो खुद पढ़ते हो, तो हम ना किसी दिन धक्का दीजिएगा तो जुम्मा के दिन तो जरूर देते हो। इमाम साहब शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी जअला यौमुल जुम्मति सय्यदल अय्याम, तो कुछ लोग इमाम साहब को ठीक आता है, कुछ लोग शिरनी वाला तगारी ठीक है। सही बोले? इमाम साहब ने कहा अस्सलामु अलैकुम, दो को पार ले दीजिए में। सुबह में इमाम साहब बोले ठीक ठाक है, कहता था थोड़ा रहे तो मौन हो कि ना। कितना सुपरवाइजर चोर लोग है यार, तो मस्जिदों को लेते हो। और सही बोला ना। सुनो, आपके यहाँ एक अज़ान में जुमला है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। इसका मतलब ये है मुसलमानों खूब सूतो, यही मतलब है। बुढ़ा सोच रहा है कि बीमारी ठीक हो तो नमाज पढ़े, बुढ़ा का सोच रहा है कि बुढ़ा हो तब नमाज पढ़े। हजरत अल्लामा रूम फरमाते कि एक बुजुर्ग दरिया के करीब बैठकर वो सोच रहे थे कि आदमी पहुंचा कहा कि हुजूर दरिया पार नहीं करनी है। कहा कि तुम्हें मालूम नहीं हम इंतजार में था किस चीज के, का दरिया सूखेगा क्यों पार करो। तब उस बुजुर्ग से उस शख्स ने कहा कि हुजूर आप पागल हो गए, दरिया कभी सूखने वाली चीज नहीं है। तो आपने फरमाया बेवजूद यही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि जिंदगी कट जाएगी और कटने के बाद एहसास के सिवा कुछ नहीं बचेगा। जवानी में इबादत कर ले। और मुस्तफा खुद फरमाते हैं कि जब बंदा जवानी में अगर नमाज पढ़ता है तो अल्लाह को जवानी से ज्यादा इबादत अल्लाह की बारगाह में जवानी की इबादत से ज्यादा बूढ़े की इबादत अफदल नहीं। इसलिए कि मुस्तफा फरमाते हैं जब जवानी में आदमी सजदे में जाता है तो सही अदा करता है, वो अल्लाह से मांग लेता है, अल्लाह उसे अता फरमा देता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना दो, सुन लीजिए, क्योंकि बाबू लोगों की फरमाइश है मंत्र सुना दीजिए, इसलिए दो चार को पढ़ दूंगा। पहले एक बार आप नबी के नाम पर सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। तो जितना चलो हम आपको दूर तो नहीं करीबे में, ये अलग बात है कि तारीख खाली होगी तब ना आएंगे, ये अलग बात। सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ऐ सोने वाले की सोते सोने से बेहतर नमाज है। सुभान अल्लाह किसको बनता है? सुभान अल्लाह। मैं पहली काम तो मैं सेहरा जाऊंगा नहीं, अमीर साहब तो चले गए, मेजर साहब अमीर की बात आ गई तो एक लड़की की तमन्ना ये थी, एक लड़की की तमन्ना थी कि हमारा जो हस्बैंड हो ना वो पैसे वाला इत्तेफाक से गौर से सुनिए, आप गाड़ी नहीं देखे, गाड़ी नहीं मिलेगा, आलिम को देखिएगा सवाब मिल जाएगा। आपको नहीं मालूम मुस्तफा की हदीस है कि अक्सर तुम उलमा की सोहबत में बैठा करो, जो दुनिया में आलिम की सोहबत में बैठेगा कल क़यामत में अपने मुस्तफा की सोहबत में बैठेगा। बेशक सुभान अल्लाह। सुनिए मैं आपको कहने जा रहा हूँ
الصلاۃ خیر من النوم، اسی وقت مندروں سے ایک آواز آتی ہے، مندروں سے ایک آواز آتی ہے۔ کتاب اور پستک کا نام ہے رام چریتر مانس۔ کیا نام ہے؟ دیکھیے ادھر سنیے، اس کو عام لفظوں میں رامائن کہتے ہیں، اور رامائن دو کوالٹی کا ہے، ایک والمیکی جی کا ہے، ایک تلسی داس جی کا۔ میں جو منتر پڑھنے جا رہا ہوں یہ تلسی داس جی کے منتر ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ کی آوازیں کم کر دی ہیں، یہی اوریجنل ہے، کبھی کبھی ڈپلیکیٹ بڑھیا چلتا ہے، اوریجنل ہے گڑبڑ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو؟ اس درمیان میں ایک بات آپ کو بتا دوں، عورت کی تمنا انگلش پڑھ لیا تھا، بکراتی چالو تھی اس نے باپ سے کہا کہ ہم اسی سے شادی کریں گے جو امیر لڑکا ہو۔ رشتہ طے ہو گیا، امیر کہہ کر کے شادی ہوئی۔ سنو احمد، امیر کہہ کے شادی ہوئی۔ جب عورت پہلی رات گھر پہنچی تو دیکھا جھوپڑی کا مکان ہے، تو شوہر سے سوال کیا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم امیر ہیں۔ کہا بے وقوف، ہم پیسہ والے امیر نہیں، تبلیغی جماعت کے امیر ہیں۔ آپ لوگ ایسا نہیں سمجھتے، غور سے سن لیجیے میری بات۔ الصلاۃ خیر من النوم، اسی وقت مندروں سے ایک آواز آتی ہے۔ کتاب کا نام رام چریتر مانس، پیج نمبر 1، منتر نمبر 8، اس منتر کا نام ہے گرو وندنا۔ جب آپ کی مسجدوں سے آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، تو اس کا ارتھ یہ بتا رہا ہے کہ اب سونے کا وقت نہیں ہے۔ مصطفیٰ کو جان سے زیادہ چاہتے ہو تو آ کر کے مسجد میں عبادت کرو۔ حضرات، ہر دھرم کا سسٹم اپنی جگہ ہے، لیکن مذہب اسلام نے جو سسٹم دیا یہ زمانے کو سوچنا پڑے گا۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں ہر آدمی مجروح ہوتا ہے، لیکن اسلام کا فالوور مجروح نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا اسلام کسی انسان کا پسندیدہ نہیں بلکہ میرے رب کا پسندیدہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اس کا نام دین اسلام ہے۔ تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ چلے اسلام کے موافق، اب بولے اسلام کے موافق، اپنے بچوں کو سمجھائے اسلام کے موافق۔ اور جس دن ایسا ہو گیا زمانہ دیکھ کر یہی کہے گا یہ غریب ضرور ہے لیکن عاشق مصطفیٰ ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب دل سے کینہ نکل جائے گا اور یہ سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ بن جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ ساتھ کرتے تو ہے نہیں، سنیے، آپ کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، تو ان کے دھرم سے پہلے بنا دو بھائی، جو پہلے تھا وہی بھی بہت اچھے ہیں۔ آپ بہت ترقی کیجئے گا، اللہ کرے 2 شان بخشنی 4 دو، اب اس سے بڑھیا ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ آمین ثم آمین۔ یعنی مولوی کی تنخواہ کے بارے میں کہو تو کوئی آمین نہیں کہے۔ ہاں پیسہ لیجیے گا تب بلائے۔ یہ آرزو ہے نا، یہ تمام لوگوں کی آرزو ہے، میرے دل کی آرزو ہے، اس لیے کچھ نہیں۔ سنے، آپ کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، تو ان کے مندروں سے اس کے جسٹ تھوڑی دیر کے بعد یہ آواز آتی ہے گرو برہما گرو وشنو گرو دیوا مہیشورا گرو سات پرم سمست شری گرو نمः۔ اے سنسار میں بسنے والے منشیوں، اٹھو اور اس کی کلپنا کرو جو مانو سنسار کا گرو ہے، جو برہما کا گرو ہے، جو وشنو کا گرو ہے، جو مانو سنسار کا بھوجن دینے والا ہے۔ میں نے کہا مہاراج وہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا رام چندر جی ہے، کسی نے کہا لکشمن ہے، کسی نے کہا شترگھن ہے، کسی نے کہا برہما ہے، کسی نے کہا وشنو ہے، کسی نے کہا پاروتی ہے، کسی نے کہا درگا ہے، کسی نے کہا لکشمن ہے۔ میں نے کہا مہاراج رکیے، اب چلیے اسی سبجیکٹ کو ذرا قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ یہ قرآن بتا وہ کون ہے جو کائنات کو کھلاتا ہے؟ تو قرآن پاک نے کہا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اور سینہ چوک کر کہو کائنات بنانے والا ہم اسے خدا کہتے ہیں، اور کائنات چلانے والے کو ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ کبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا
नारे तकबीर।